हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। हमने उस दिन डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सेल में दो प्लेट्स होंगी, कैथोड एंड एनोड। देयर विल बी इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन द सर्किट completed, current flows inside the cell, but during the flow of current there is a restrictions. ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द आयंस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस। जो रिस्ट्रिक्शंस होगा उसको ही हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। सेल के अंदर जो रुकावट पैदा होती है दैट इज नोन एज द इंटरनल रेसिस्टेंस। हमने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा। दिस इज अ सेल, इफ मोर आर सेल देन बैटरी, देन देयर विल बी अ इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, and when it is connected with external resistance, means resistance of battery, a circuit completes. Let this is capital R. Let the EMF of cell is E, and the internal resistance is small r, and this is total called cell. ये जो है this is called total cell। अगर सिंगल है, अगर है तो बैटरी है। Current always flows. Current always flows from positive plate to negative plate. See carefully. Current always flows from positive plate to the negative plate outside the cell, but inside the cell this is from negative to the positive. Make sure outside cell direction of current positive to negative. Inside cell that will be negative to positive. See here, outside this is plus to minus, inside minus to plus, and this makes a closed circuit. So what happens when current flows here, I flows this side, there will be a potential drop here. There will be a potential drop, and this potential drop is known as V. This potential drop is known as V. Now there are two terms. First one, EMF. EMF means electromotive force. And second is potential difference or potential drop. Potential drop or potential difference is same. So this is denoted by capital E, this is denoted by capital V. Now see here in this diagram, what are both? Potential drop or potential difference will be along any resistance, external resistance. For example, if there is a fan is connected, then this requires a certain voltage, that is called potential difference across the ends of the fan. या बल्ब है, ट्यूब है, या कोई दूसरा डिवाइस है, in that case the potential difference will be as per the device. And EMF, electromotive force, is not a force. Actually the name of electromotive force like a force, but it is not a force. It is a energy. This is a energy. This is a energy which gives the energy, the device which gives the energy, cell, and this energy is called electromotive force, required energy for the motion of electrons. Required energy for the motion of electrons. But now see what is the difference between E and V. E यानी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है। सी मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपने एक टॉर्च का सेल परचेज किया, उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट
आपने उसको सेल पे लगाया या टार्च पे लगाया या कहीं भी आपने उसको यूज़ किया, जब आप यूज़ करेंगे तो डे बाय डे वन डे वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो ईएमएफ था दैट इज़ लॉस्ट। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो करते समय जो ड्रॉप वहाँ हुआ, जितने समय तक आपने टायर चलाया, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और जो टोटल एनर्जी इसके अंदर है E। ये एनर्जी कम भी हो सकती है। अगर इसको हम दो प्रोसेस होता है सेल में, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक मैथमेटिकल रेफरेंस मैं आपको दूं। जैसे मैथमेटिक्स में एक होता है सेट और सबसेट। तो जो एक सेट होता है, सेट ईएमएफ होता है, और जो सबसेट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समटाइम्स इट मे बी इक्वल लाइक प्रॉपर सेट, समटाइम्स इक्वल टू वी भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स ई लेस देन वी भी हो सकता है। लेकिन जनरली इसको ये मानते हैं कि दोनों एक ही है, दोनों का यूनिट भी सेम है। देखिए दोनों का यूनिट E इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू आल्सो W अपॉन Q। मैथमेटिकली बोथ आर सेम, their unit is same, unit will be bold for both, but their physical significance is different. EMF, energy given by the cell for the circuit components, and V is the potential drop across the components. And this potential drop because of their rating, because of their resistance, ऐसा। तो ये कंसेप्ट हुआ। फिर मैं एक दूसरी जो चर्चा कर रहा था आपसे कि सेल में दो प्रोसीजर होती है, एक होती है चार्जिंग और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग। जरा इन दोनों बातों को समझिए, क्या मीनिंग होता है, चार्जिंग क्या होता है और डिस्चार्जिंग क्या होता है। जब सेल के अंदर एनर्जी बाहर से आती है, जैसे आपने आपके मोबाइल की बैटरी है, ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्जिंग कब होगी? जब उससे करंट फ्लो होगी। और चार्जिंग कब होगी? जब सेल के अंदर करंट आएगी। सेल चार्जिंग में क्या होगा? सेल टेक्स चार्ज फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम आउटर सोर्स। जैसे चार्ज मीन्स करंट। जब सेल बाहर से कोई चार्ज लेता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। आप देखें, एंड डिस्चार्जिंग है सेल गिव्स चार्ज टू अदर बॉडी, सेल गिव्स चार्ज टू अदर कंपोनेंट्स। समझ गए आप बात? जब सेल चार्ज खुद लेता है, इनटेक करता है, देन इज कॉल्ड चार्जिंग। व्हेन द सेल गिव्स द चार्ज टू अदर, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। क्या इनमें रिलेशन है ई और वी में और आर में, और इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या रोल है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। जरा देखिए, थोड़ी मैथमेटिकल रिलेशन देखिए। अब इसमें आप आई देखिए, तो आई ड्यू टू सेल विल प्रोवाइड हाउ मच करंट, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, total EMF upon total resistance, and what is the potential drop across R? Potential drop across R equal to V equal to IR, this I equal to V upon R. But I is the same, so comparing both. Now you can write here comparing both. When you will compare, see, I is the same, E upon R plus R equal to V upon R. When you solve it, ER equal to V R plus R, ER is equal to V R plus VR. So see, here you can write ER equal to VR, no? VR plus IR into R. See, V equal to IR, be substituted here. Then what happens here?
what happens here, take R outside, then E equal to V plus IR. See, this is the relation E equal to V plus IR or V equal to E minus IR. This is the relation between V and E. In which condition? Charging or discharging? What happening here? Tell me. What happening here? Discharging. What happening? Discharging. Current is flowing from the cell, so it is a discharging. And opposite to this, V equal to E plus IR. This is charging. This is a charging. Opposite to this, here current is minus I, and here current will be in the place of I minus I. See, here I is plus, here in the place of I minus I, so minus minus plus. So there are two relations. Be careful. When the current is flowing from the cell in the circuit, then you will use potential difference across this V equal to E minus IR and this value. Clear? Now, relation between small r and capital R we will decide. Now, again, I equal to E upon R plus R and I equal to V upon R. So, we will make again relation comparing both. E upon R plus R equal to V upon R. ER is equal to VR plus VR. Now see, VR equal to ER minus VR. So small r equal to E minus V upon V into R. Can be written small r equal to E upon V minus 1 into R. See, this is the internal relation. This is relation between internal resistance. This is the external resistance, means resistance of the cell. E is the EMF, V is the potential difference. Now see, when will be R equal to 0? When E equal to V, if E equal to V, put here, that will be 1 minus 1, then R will be 0. अगर ऐसा हो कि जितना EMF हम दे रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाए तो इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होगा, अदरवाइज इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ न कुछ रहेगा. जैसे मान लो कि हमने ई को दिया 5 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ 3 वोल्ट, तो 5/3 देयर विल बी 1.66 माइनस 1. अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन वी है, अगर ई की वैल्यू वी से ज़्यादा है, देन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर ई की वैल्यू वी के बराबर है तो आर 0 होगा. इस केस में देखिए, दो केस हम यहाँ कह रहे हैं. इफ ई इक्वल टू वी देन आर इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस रिलेशन, इफ ई इज ग्रेटर देन वी, दिस रिलेशन, इफ ई इज ग्रेटर देन वी, आर विल बी ग्रेटर देन 0. यानी इसकी कुछ न कुछ वैल्यू अवश्य होगी. तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया. And now factors affecting the internal resistance. Internal factors affecting internal resistance. See carefully. This is a cell. These are the plates. Here is the electrolytes, and the X by electrolyte is there. So this is plus, this is minus. The X by if electrolysis takes place like X plus and Y minus, then what happens? X plus इधर जाएगा, Y माइनस इधर जाएगा. ऐसे इनके आयन की रुकावट होती है. तो जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो क्या है? पहला, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बताओ, कैसे करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा. आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. हाउ? द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बढ़ा देंगे
बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कम रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। साइज प्लेट साइज यानी ये जो है ये प्लेट साइज बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक। फिर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सी केयरफुली, रेसिस्टेंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा, प्लेट साइज पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा। लेकिन वहीं अगर हमसे कोई कहे कि ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या ईएमएफ इन सब पर डिपेंड करेगा? नो नो नो, ईएमएफ विल डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स only on nature of electrolyte। यहाँ पे मैं समराइज करूँ कि इंटरनल रेसिस्टेंस विल डिपेंड्स ऑन द प्लेट साइज, कंसंट्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, टेम्परेचर, लेकिन ईएमएफ इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करेगा। ईएमएफ डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या भरा हुआ है। जैसे आप वोल्टाइक सेल में, लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड है, या डैनियल सेल में आपका H2SO4 है, फिर वोल्टाइक सेल में दूसरा है, ड्राई सेल में दूसरा है। तो जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है रिगार्डिंग ईएमएफ उस पर डिपेंड करेगा, ना कि सेल की साइज, कंसंट्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या इन फैक्टर्स पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। तो जो हमने आज एक बैकग्राउंड डेवलप किया, आज जो मैंने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशंस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और जो मैथमेटिकल रिलेशन ई और वी में है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कैसे होगा, करंट फ्लो कैसे होगी सेल से, और लास्ट में हमने देखा कि हाउ द इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स व्हाइल द ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अभी आज के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, बेस कंप्लीट करते रहिए। थोड़े से जो मैं गैप अप कर रहा हूँ वीडियोस में, ये इसलिए कि आप ताकि पढ़ाई में ज़्यादा समय दें। एक वीडियो के लिए आप एक दिन 2 दिन पढ़ें बुक्स में उसके बारे में, देन आगे दिया जाए। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन वीडियो है, इस लेसन का जो करंट का मेन थीम है या न्यू कंसेप्ट जो आपको पढ़ने के लिए है, वो किरचॉफ्स लॉ है। कल से अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ को शुरू करेंगे और उसको देखेंगे उसमें क्या होता है। एक और डिस्कशन कर दूं, कम्बिनेशन इन रेसिस्टेंस पहले 12th में था, लेकिन अब कम्बिनेशन इन रेसिस्टेंस का सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशंस और डिटेल्स अब नहीं है, ये 10th में शिफ्ट हो गया है। तो कम्बिनेशन इन रेसिस्टेंस की जानकारी तो होनी चाहिए, और कब सीरीज और कब पैरेलल है उसका भी हम रिवीजन करेंगे किसी दिन, लेकिन उसके पहले हम आएंगे सीधे आपको किरचॉफ्स लॉ के नेक्स्ट वीडियो पे, आप उसको पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।